Hello everyone, welcome back to my channel. Dear students, today we are going to discuss chapter light of the class 10th physics. ठीक है, मेरी इस वीडियोस में I will try to complete the topic wise syllabus for the class 10th और हम स्टार्ट करेंगे the very basic concept that is the introduction of light and the basic terms related with the chapter light. Okay, so let's start with what is light. Light is basically the form of energy. ठीक है, so light is a form of energy which produces the sensation of sight. ठीक है, sight means देखना, जो ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं. हमारी लाइफ अगर हम इमेजिन करें विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर लाइट है तो हम चीजों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट. ठीक है, अब लाइट क्या है, लाइट की टाइप्स क्या हैं, कैसे उनके बेसिक फिनोमिना हैं, वो टर्न बाय टर्न इन वीडियो सीरीज में वी विल डिस्कस. ओके, सो टुडेज आवर वीडियो विल कंस्टिट्यूट ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट. So light is a form of energy which produces in us the sensation of light. अब light जो है कैसे होती है, ठीक है, देखो there was a very long discussion about the light. Some scientists says that light travel in a path of light, मतलब in a straight line path. ठीक है, अगर वो straight line path में चलती है like this, तो इसे हम बोलते हैं ray. ठीक है, when light travel in a straight line path, this is known as a ray. Arrow represent the direction of the path of the light, कि light किस डायरेक्शन में जा रही है. Now when these rays combine together, right, combine together, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो bunch of rays जो होगा उसे हम बोलेंगे beam of light. Okay, तो when a light travels in a straight line, so that in that case that is known as a ray and the bunch of the rays is called a beam of light. ठीक है, then there is a third word which is known as the pencil of light. Now what is that? जब very narrow beam of light means अगर हमारे पास 2 or 3 rays हैं, ठीक है, very narrow beam of light we are having, at that moment we call that rays as the pencil of rays. ठीक है, so narrow beam of light is called pencil of rays. Basically narrow beam of light की help से we can discuss about the various types of rays, like जैसे convergent rays, divergent rays, parallel rays. So narrow beam of light is known as pencil of rays. So I repeat, a single ray of light means when a light travels in a straight line path, then that represent a ray, right? Bunch of rays is known as beam of light, and then we are having a very narrow beam of light that is known as the pencil of rays. Right? Let us discuss about the different types of ray. Right? Pencil of light जो है, the pencil of light can be of 3 types. So note it down. Pencil of light can be of 3 types. Pencil of light is of 3 type. कौन कौन सी है? फर्स्ट है कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट पेंसिल, और उसको हम सिंपली कह सकते हैं कन्वर्जेंट रेज. नाउ व्हाट आर द कन्वर्जेंट रेज? कन्वर्जेंट रेज का मीनिंग है कि जब जो नंबर ऑफ रेज हैं दे आर appear to come, they come to meet at single point, right? जैसे if I make this and 2 rays are like this, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, so we can say that at this point they are converging, these 2 rays are converging at this point, like this. If 2 points comes to meet at a point, right, if 2 rays comes to meet at a point O, then these rays are known as convergent rays or the convergent pencil. ठीक है, so when 2 or more rays
comes to meet at a point, then the rays are known as convergent rays. ठीक है, यहाँ arrow represent कर रहा है the direction in which the rays are moving. Now let us discuss about the divergent rays. Second is divergent rays or divergent pencils. Second is divergent rays or divergent pencils. ठीक है, what is that? In that case, when two rays, ठीक है, when two rays diverge means move away from a point like this, move away from a point. So in that case, if I draw the figure, two rays move away. See the difference between the arrows. यहाँ पर arrows क्या हैं? They are inward, meeting at a point. तो these are known as convergent rays. और यहाँ पर arrow क्या है? Outward, बाहर की तरफ फैल रहे हैं. So when a rays diverge means comes out, diverge away from the point, that rays are known as divergent rays. ठीक है, so when two or more rays comes to meet at a point, the rays are known as convergent rays. When two or more rays goes away, move away from a point, that is known as like this, that is known as divergent rays or divergent pencil. थर्ड हमारे पास आता है पैरेलल रेज, पैरेलल रेज और पैरेलल पेंसिल. ठीक है, पैरेलल रेज में क्या है? व्हेन ऑल द रेज आर इक्विडिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस बट आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. अगर दोनों एक साथ मूव कर रही है रेज, तो इन दैट केस दैट रेज आर नोन एज द पैरेलल रेज. सो आई होप you must have cleared the concept कि convergent rays when two rays are meeting at a point, arrow की direction is representing they are coming from outward and meeting at a point. ठीक है, divergent rays means when they are going out from a point, बाहर की तरफ फैल रही है, so arrow is out from the point, and parallel when they are equidistant from each other. ठीक है, सो आई होप द टाइप ऑफ रेज जो है हमने डिस्कस कर लिया एंड आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल्सो. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ लाइट. अब लाइट पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट आती कहाँ है, कहाँ से आती है? वी नो दैट जो सन है दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हर समय हम सन की लाइट का ही जो है यूज नहीं कर सकते, बिकॉज घरों में हम के रूम्स हैं दे आर जस्ट लाइक अ ब्लॉक्स, तो वहां पर वी नीड अ लाइट, वी नीड अ कैंडल्स, वी नीड अ बल्ब. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर हैविंग बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. लेट अस डिस्कस दैट टर्न बाय टर्न. सो सोर्सेज ऑफ लाइट, एज द नेम एक्सप्लेन, जहां से हमें लाइट मिलती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. सोर्सेज ऑफ लाइट, द फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की चमक है, मीन्स जिसका जो खुद से शाइन करता है, जिसकी खुद से अपनी लाइट होती है. ठीक है, ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सन इज अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. अच्छा, हम बात करते हैं कैंडल भी अपनी लाइट देता है जलने के बाद, सो दैट इज अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. इलेक्ट्रिक बल्ब दैट इज ऑल्सो और ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड सो ऑन. जिनका भी अपनी लाइट खुद की लाइट होती है उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जिनका खुद का ल्यूमिनस नहीं होता, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, दे शाइन्स, they glow just because of the light of the others which fall on them. मतलब जब कोई लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होती है और तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बोलते हैं उनको, दीज आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल मून. जो मून है, मून का अपना कोई लाइट नहीं होता. ठीक है, दैट शाइन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट फॉल्स ऑन इट. राइट, सिमिलरली हमारे घरों में आपको जो चीजें दिखती हैं, लाइक जैसे बल्ब हो गया, टेबल हो गया, दीज आर ऑल आर द नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, जिनकी लाइट नहीं है. नॉन ल्यूमिनस लाइक टेबल हो गया,
ठीक है, और एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ योर डेली लाइफ जो जिसकी खुद से कोई लाइट नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ठीक है, आई होप द सोर्सेस ऑफ लाइट इज क्लियर टू ऑल। Now let us now discuss about the medium. लाइट जब ट्रैवल करती है तो that needs a medium to travel. ठीक है, लाइट मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है। सो कितने तरह के मीडियम है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। सो मीडियम ऑफ लाइट, ठीक, चलिए मीडियम मीन्स, मीडियम का मतलब क्या हुआ कि लाइट कहां से कहां तक पास कर रही है। जैसे कि सपोज सनलाइट इज ट्रैवलिंग तो एयर के थ्रू हमारे तक पहुंच रही है। ठीक है, या पानी, आप लाइट, टॉर्च लाइट लेते हो, आप पानी में डालते हो लाइट, ठीक है, और वो पानी से आप नीचे की तरफ लाइट देख रहे हो, तो क्या मीडियम है जिसमें से लाइट आप पास करवा रहे हो। ठीक है, तो तीन तरह के मीडियम्स होते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम जिसमें से लाइट फुली पास हो जाती है, दैट अलाउज द लाइट टू फुली पास थ्रू देम, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ग्लास की, कांच, ग्लास, जो ग्लास है वो एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर, वाटर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लास, एयर, वाटर, दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। बेसिकली वो मीडियम जिनके आर पार हम इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गए हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऑफ लाइट, जो पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट को टू पास थ्रू देम, partially allow the light to pass through them, ठीक है, partially, जैसे पेपर हो गया, फॉर एग्जाम्पल पेपर, आप पेपर के आर पर देख सकते हो बट नॉट सो क्लियर। ठीक है, एक होता है आपके पास जो विंडोज में लगे होते हैं ग्लास, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास। ठीक है, ग्राउंड ग्लास, ऐसा ग्लास जो ब्लर सा होता है, जिसके आर पर आप देख सकते हो बट नॉट टू मच क्लियर। ठीक है, फिर आपके पास आता है ओपेक सरफेस, मतलब बिल्कुल जो लाइट को अपने से पास होने ही नहीं देता, डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, राइट, फॉर एग्जाम्पल वुड। ठीक, तो तीन तरह के मीडियम हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड द ओपेक सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट जो फुली अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसल्यूसेंट जो पार्शियली अलाउ करते हैं, एंड ओपेक जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते लाइट टू पास थ्रू देम। सो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मीडियम जिसमें से लाइट पास करेगी। लेट अस नाउ डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट, which is the reflection of light. So reflection of light, ठीक है, what is reflection of light? It is the phenomena of bouncing back of light in same medium। ठीक है, bouncing back of light in the same medium on striking any surface, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। The phenomena of bouncing back of light in the same medium ऑन स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है और वो वापस सेम मीडियम में चली जाती है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेट अस सी द डायग्राम ऑफ दिस। लेट अस कंसीडर हमारे पास ये सरफेस है, ओपेक सरफेस वी आर टेकिंग हियर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में वो ट्रांसमिट हो जाएगी यहाँ से यहाँ लाइट, तो विल टेक अ मिरर फॉर दिस
मिरर्स में क्या है, मिरर एक ग्लास सरफेस है जिसके नीचे पॉलिश की जाता है ताकि लाइट जो है वो वापस दूसरे मीडियम में एंटर ना करे, ठीक है। तो इन दैट केस लेट अस कंसीडर, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल एंड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज द मिरर which is reflecting surface, ठीक। let this light is made to fall at angle incidence I, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, देखो a ray of light है तो हमने represented by straight line, arrow represent कर रहा है the direction of incidence, तो ray is entering like this and falling at the surface, angle is made between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence, angle of incidence. This ray is called incident ray, right? So when it falls on the surface it reflects back in the same medium, वापिस same medium में चली जाती है, ठीक है। तो that is known as this ray which is coming back from the same medium in the same medium is known as reflected ray, and the angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection, So this phenomena in which when a light is made to fall over any surface at some angle of incidence and it gets back in the same medium after striking the medium is called, surface is called the reflection of light. Basically dear students, जो reflection of light है depending upon the surface on which it is falling, it is of two types. So one is regular reflection and another one is diffused reflection, ठीक है। Now let us discuss these turn by turn. What is regular reflection? Regular reflection is that in which the light is falling over a smooth surface, right? Regular reflection in which light is falling on smooth polished surface, अब इस केस में क्या होगा, सी अब आपके पास एक मिरर है, मिरर एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। तो इस केस में ये लाइट जब फॉल करेगी, सपोज पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ओवर इट, यहाँ पर एक रे, यहाँ पर एक रे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका नॉर्मल ये हो गया N1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका नॉर्मल हो गया N2। तो अगर ये स्मूथ सरफेस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट दैट मोमेंट विल बी सेम, ये यहां से जाएगी एट दिस मोमेंट जितना एंगल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन के लॉज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जितने एंगल आई पर ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आर पर, ठीक है। ये इंसिडेंट हो गई तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, इसकी ये इंसिडेंट हो गई तो इसकी ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। Means on the smooth surface, if parallel rays are falling over the surface, they will move parallel to each other, ठीक है। बाद में भी वे पैरेलल बीम के फॉर्म में ही जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को जो स्मूथ सरफेस पर होती हैं और अगर पैरेलल रेज फॉल हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही रहेंगी, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो हुआ द रिफ्लेक्शन इन विच डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन the reflection in which the light is falling on rough surface, किसी रफ सरफेस पर वो फॉल कर रही है, ठीक है। अगर वो रफ सरफेस पर फॉल करेगी तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लेट अस सी, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर हमारे पास जो ये सरफेस है ये थोड़ा सा रफ सरफेस है। एट दैट मोमेंट लेट अ रे इज इंसिडेंट एट एंगल आई, ठीक है। Similarly, another ray is incident at that point.
नाउ रफ सरफेस पर क्या होगा, बिकॉज जैसे ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये सरफेस ये था, एक रे यहां से आई और यहीं से वापस गई। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब हमारा सरफेस यहाँ पर रफ है, ठीक है, इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग ये रे ऐसे हो जाएगी, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया। क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। समझेंगे इसको? देखो, अगर आपके पास एक सरफेस स्मूथ है तो आप रिफ्लेक्शन स्टडी करोगे यू, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन अगर आपका सरफेस रफ है, एट दैट पॉइंट एक रे यहां पर फॉल की, इसका एंगल ये हो गया, एक रे यहां पर फॉल करेगी, ठीक है, तो इसका एंगल ये हो गया, राइट। अब आप देखो, अब इसके बाद क्या है, इसमें जा तो पैरेलल रेज रही थी, लेकिन वहां पर वो एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड ईच अदर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे भी जो होंगी वो पैरेलल होंगी। लेकिन डिफ्यूज के केस में क्या हुआ कि अगर पैरेलल रे इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं रहती, बिकॉज इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जिसमें स्कैटर्ड हो जाती हैं आफ्टर द लाइट रिफ्लेक्शन, ऐसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो हमारे घरों में हम देखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, चेयर दिख रही है, टेबल दिख रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि वो घरों में जितना भी एसेसरीज हैं, होम एसेसरीज हैं, दैट आर द रफ सर्फेसेस। तो जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो स्कैटर्ड लाइट की फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से वो हमें प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट इजिली विजिबल होता है, मींस हम हर पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जिस पार्ट पर लाइट फॉल की है उसी पार्ट को हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें स्कैटर्ड है तो हर पार्ट जो है इजिली विजिबल होगा। तो दैट स्कैटर्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज बेसिकली वी कैन ऑब्जर्व इन आवर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट तो वी ऑलरेडी अभी डिस्कस्ड, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नंबर टू, incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane. Now you can see here incident ray, reflected ray, normal एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस जितने एंगल पर एंगल इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट टू बी डिस्कस, नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मीनिंग है। नॉर्मल इंसिडेंस मींस जो लाइट है, इंसिडेंट रे इज फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल। समझते हैं इसको, ये नॉर्मल है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर ये रे नॉर्मल के अलोंग हो जाएगी तो ये जो एंगल आई है वो कितना हो गया, जीरो। देखो आई यहां से घटता 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 जीरो, यानी कि जब लाइट नॉर्मल के अलोंग फॉल करेगी, एट दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई जीरो हो गया। अगर आई जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर भी जीरो हो गया, और आर जीरो होने का मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे चली जाएगी, वो भी नॉर्मल के अलोंग हो जाएगी, राइट। इट मीन्स नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम अलोंग द नॉर्मल, मीन्स अगर एक लाइट फॉल की, एरो नीचे शो कर रहा है कि इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, इस केस में एंगल आई कितना हो गया, जीरो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम नॉर्मल के अलोंग जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द mirrors, type of mirrors, concave mirror, convex mirror, and the reflection on that surfaces in my next video. So till that, keep understanding this and keep doing my videos. Thank you and have a nice day.